Today we are going to study the subject Financial Reporting and Analysis. We'll be starting with the Unit 2, which is Financial Statement Preparation and the Statement of Cash Flows. So by the end of the session, you all will be able to know some basic accounting terms, why hotel needs specialized journals, some key journals which are Purchase Journal, Guest Ledger, Cash Disbursement and Payroll Journal. I want everyone to be please pay attention because by the end of the session you all will have to answer some questions which will be there in the quiz. So before beginning the session, we'll be seeing some accounting terms. So what does accounting means? Can anyone tell? Debit what comes in, credit what goes out. Accounting is basically recording of the numbers that any business or any firm is earning or spending or whatever it is. All the numbers are the record keeping of that numbers is what accounting is about. So you are somewhat correct, Shreya. So accounting is basically recording all the monetary transactions at one place, like Shreya said, recording. So accounting is basically to record all the transactions. Transactions means activity which goes on in any business with selling and exchange of money. This is basically accounting is. So first term is business. What does business mean? Can anyone tell? Okay, I'll tell you. Business is an activity where number of buyers and sellers are there. It's basically main motto of business is to earn profits. This is basically business. Next is transaction. Transaction means any business activity which involves money value. Like any business, आप किसी दुकान पे गए हैं कुछ लेने तो आप कुछ ले भी रहे हैं. If you are taking this marker, you'll be giving money in exchange of it. This is transaction between you and the customer and the buyer. This is the transaction. Next is capital. What does capital means? The Money that investment. was- Yeah, you all are correct. Money पैसा. जो कि पैसा इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस ओनर ने फर्म में अपना बिजनेस शुरू करने से पहले पैसा नॉट ओनली वैल्यू मनी इट्स ऑल्सो अबाउट द आइटम्स विच हैव मॉनेटरी वैल्यू जैसे कि ये कॉलेज ने क्या इन्वेस्ट किया है फॉर एग्जाम्पल कैन एनीवन fees term there is, जैसे for example हमारे लिए investment will be the fees that we are providing. एंड फ्रॉम कॉलेज साइड व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट Infrastructure. दिस टेबल्स चेयर्स एवरीथिंग कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट इज ड्राइंग्स सो ड्राइंग्स एक अमाउंट होता है या फिर कोई आइटम जो कि ओनर इटसेल्फ अपने बिजनेस में से लेके जाता है फॉर पर्सनल यूज दिस इज ड्राइंग्स कोई एग्जाम्पल दे सकता है ड्राइंग्स का For example कोई business में से किसी ने पैसा निकाल के अपना कोई कार ले लिया किसी ओनर ने तो that is वो withdraw करके उससे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ ले लिया. सैलरी नहीं होती नो फॉर पर्सनल यूज बिजनेस में सिर्फ ओनर जो ले रहा है सैलरी उसके अंदर नहीं आएगा ड्राइंग्स के अंदर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दिस ट्राईपॉड बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर और मैं कॉलेज की फैकल्टी हूँ तो मैं ये ट्राईपॉड लेके जा रही हूँ मेरे पर्सनल यूज़ के लिए दिस इज ड्राइंग्स एंड आई हैव टू रिटर्न इट बैक टू द बिजनेस ऑफ फर्म और द कॉलेज दिस इज बेसिकली ड्राइंग्स आई होप इट्स क्लियर assets assets are the things owned by business that have monetary value जैसे कि assets जो हो गया कॉलेज के लिए ये ब्लैक बोर्ड ये टीवी ये कंप्यूटर्स लैपटॉप्स जो हमारी लाइब्रेरी में बुक्स है दिस ऑल आर assets फॉर द कॉलेज किसी भी बिजनेस के लिए assets क्या होंगे And building machinery capital. दैट्स करेक्ट लाइबिलिटीज क्या होती हैं लाइबिलिटीज वो होती हैं जो कि बिजनेस ओ करता है किसी थर्ड पार्टी को जैसे कि बिजनेस को कुछ किसी को देना है दिस इज लाइबिलिटी बेसिकली जैसे कि कर्ज बोलते हैं उधार जो बोलते हैं दिस इज लाइबिलिटी सम अदर अकाउंटिंग टर्म्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच इज रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होता है
इनकम अर्न बाय नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी इनकम किसी बिजनेस ने अर्न किया है किसी बिजनेस के एक्टिविटीज के थ्रू। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि वेर हमारी इनकम कम है और हमारे एक्सपेंसेस जो होती है वो रेवेन्यू को अर्न करने में जो हम लगा रहे हैं पैसा, दिस इज बेसिकली एक्सपेंस, हमारे खर्चे। प्रॉफिट जब होता है जब कि हमारी इनकम ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे। लॉस जब हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी इनकम बहुत कम हो रही है। जैसे कि हमारी लॉस जब होगा जब हमारी सेलिंग प्राइस कम है और हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। जैसे कि हमने ये पेन खरीदा 50 में, हम बेच 40 में रहे क्योंकि कोई 50 में ले ही नहीं रहे, तो ये तो हमारा लॉस हुआ। दिस इज बेसिकली लॉस। जर्नल क्या होती है? जर्नल इज बेसिकली इन अकाउंटिंग अ बुक कीपिंग जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। सो इसके लिए हम अभी और डिटेल में समझेंगे। लेजर क्या होता है? बुक्स वेयर ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन इन क्लासिफाइड फॉर्म। तो जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैंने आई एम एन बिजनेस ओनर ऑफ स्टेशनरी शॉप, तो आई सोल्ड समथिंग 3 books टू प्रतीक, 2 books टू तत्सत एंड 5 pens एंड 3 books टू आकांक्षा। तो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हुए, प्रतीक, आकांक्षा एंड तत्सत। तो लेजर में क्या होगा कि लेजर में प्रतीक का एक अकाउंट अलग बनेगा, तत्सत का एक अकाउंट अलग बनेगा, आकांक्षा का एक अलग अकाउंट बनेगा। तो अलग अलग क्लासिफाइड फॉर्म के अलग अलग कैटेगरीज बेस्ड होते हैं इसके अंदर। देन इज कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि कोई बैंक थ्रू पेमेंट हुआ है, कैश थ्रू पेमेंट हुआ है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। इसमें कोई भी उधार पे दिया हुआ सामान इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। फॉर दैट देयर इज अ सेपरेट अकाउंट जर्नल विच विल बी स्टडिंग फर्दर। So before proceeding more, I want you to all just have a look on the blackboard, क्योंकि ये basic 3 rules हैं, golden rules है accounting के, which will be beneficial for you for the further classes which will be taking for the same unit. तो 3 accounts होते हैं basically. First is real account, personal account and nominal account. तो real account का क्या rule होता है? That is debit what comes in and credit what goes out. ये उस बेसिक पे है जब हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो ये उसके लिए हमको 3 रूल्स हैं कि हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मींस हमारे पास कुछ भी चीज़ जो आ रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स वी आर प्रोवाइडिंग, हम इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, इन एक्सचेंज ऑफ कैश वी आर गिविंग टू समवन सप्लायर, और हम परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए हम उस चीज़ को डेबिट करेंगे जब हम एंट्री करेंगे, उस टाइम पे डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब हम पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर्स को, जब हम सामान लिए किसी से और हम उसके बदले में पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास से जा रहा है, तो जब एंट्री होगी तो उस चीज़ को हम क्रेडिट कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये आज तो नहीं है इस चीज़, आज माई टॉपिक इज नॉट दिस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। सो हम इफ यू सी, हमने गुड्स खरीदे फ्रॉम प्रतीक, हमने गुड्स खरीदे हमारे बिजनेस के लिए फ्रॉम प्रतीक, तो हमने क्या किया है? परचेज किया है। तो हम एंट्री कैसे करेंगे? इसमें यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट होता है जर्नल का। तो ये फॉर्मेट होता है जर्नल का, बेसिकली जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। डेट होती है जिस डेट को हमने किया, पर्टिकुलर्स, इसमें हम एंट्री करेंगे डेबिट क्रेडिट। तो परचेज, हमने परचेज किया था प्रतीक से गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट, जितने का परचेज किया हमने 10,000 का परचेज किया बेसिकली, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम ऐसे करके DR लिख देंगे। 2, हमने किस एक्सचेंज में परचेज किया? या तो हमने कैश पेमेंट किया होगा या बैंक ट्रांजैक्शन किया होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज। सो ये और ये चीज इक्वल होनी चाहिए। दिस इज अ वन एग्जाम्पल, I hope it's clear to non-commerce students. I'll explain once again if it's not clear. Basically,
हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, तो हमारे पास परचेज गुड्स आए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास परचेज हुआ ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने वो चीज़ डेबिट की हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से पैसा गया तो वो जा रहा है ना, तो दैट इज व्हाट इज, क्रेडिट तो होता है तो पैसे आते हैं ना। वो बैंक के बैंक एस्पेक्ट, में तो क्रेडिटेड मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया। दैट इज इन दी बैंक एस्पेक्ट अलग होता है डेबिट क्रेडिट वाला, और बुक्स ऑफ जनरल में अलग होता है, अलग अलग बस अपोजिट हो जाता है। बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, जब बैंक लिखता है ना डेबिट और क्रेडिट के बारे में, बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि तुम्हारे बैंक में पैसे अच्छा, आए बैंक गए, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैटर करता है कि कंपनी जो रूल है पॉइंट ऑफ व्यू देखता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। देन पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसके अंदर कस्टमर्स जिसको मिल रहा है, जैसे आपने 3 कॉपीज ली थी स्टेशनरी शॉप से, तो आपको मिल रही थी वो चीज़, तो आप आ जाओगे डेबिट में, एंड क्रेडिट द गिवर, आई एम द सप्लायर, तो आई विल कम इन दी क्रेडिट लिस्ट, क्योंकि ये पैसा तुमको दिया, हाँ तो तुमको क्रेडिट हुआ। नहीं, आप अगेन बैंक के एस्पेक्ट से सोच रहे हो। यहाँ पे क्या है, डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा, मतलब क्रेडिट हो रहा है, हाँ जिसके पास से जा रहा है, मेरे पास से जा रहा है, इट्स माय शॉप, तो मैं क्रेडिट में जाऊंगी, एंड जिसको मिल रहा है वो डेबिट होगा। इट्स जस्ट इफ यू फॉलो दिस रूल्स यूल बी, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट क्या है एंड उस बेसिस पे करने में। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, उसका रूल ये होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जैसे कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहे हैं, जो भी हमारे खर्चे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिट कर देंगे सारे इनकम्स एंड गेन्स। जैसे कि हम रेंट और सैलरी दे रहे हैं किसी, हमारी कंपनी में से कॉलेज सैलरी दे रहा है सर को, तो दे डेबिट दी सैलरीज टू मिस्टर अभिनव, मिस्टर अमोल, लाइक दैट, एंड क्रेडिट कर देंगे। इसकी निगाह चल रही है। एक्चुअली देयर इज अ करेक्शन, नॉमिनल के केस में हम लोग कभी सैलरीज को नहीं देखते हैं, नॉमिनल जब भी सैलरीज की बात करते हैं वो हम रियल उसमें बात करते हैं, रियल अकाउंट नीचे सॉरी, सेकंड वाला इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। क्या बोला, हम लोग सैलरीज को कभी भी नॉमिनल में नहीं गिनते हैं, नॉमिनल में क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स को सिर्फ गिना जाता है, सैलरीज हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, ये सब पर्सनल में देखा जाता है। रियल अकाउंट में सिर्फ प्रॉपर्टीज, एसेट्स, उनको रियल अकाउंट में देखा जाता है, तो ये एग्जांपल्स हैं। ओके, कॉमर्स टू कॉमर्स। जल्दी से हो गया, Don't worry, we are out. सर जब तक इसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर पाओगे I'm नहीं also समझ out पाएंगे। there. क्या कह रहा? जब तक इसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करोगे नहीं समझ पाओगे। जब मैं भी 11th में थी ना, तो बहुत these मात्रा में three अच्छी things are the main thing। हाँ। पूरा कॉमर्स को समझने के लिए ये तीन ये rules तीन तो का समझ part में इलाज है, Accounts तो का इम्पोर्टेंट है ये काफी, तो इसीलिए कि किसको गिना जाता है कौन से आई होप अकाउंट श्रेया में। क्लियर व्हाट इज इट। तो जो श्रेया ने बोला है दैट इज करेक्ट, सो विल मूव फर्दर। We will refer before exams. सभी ट्रायल बैलेंस से बाकी है। आइए और ले आए आते हैं। So moving further, can anyone tell why hotels need specialized journals? क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि होटल किस तरह से अपने जर्नल्स मेंटेन करता है, क्यों मेंटेन करता है? ऑडिट करने में आसानी होती है सबसे पहली बात तो। स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। That's correct. एंड होटल 24/7 काम करता है, तो उसकी अकाउंटिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिसाब मिला। So as like you all have said कि होटल्स पूरे टाइम बहुत काम करता रहता है, पूरे टाइम रन करता रहता है, तो और उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का एक ही जगह नोट नहीं रख सकते हैं वो लोग, सारे ट्रांजेक्शंस एक ही जगह नोट करेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूज्ड फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जर्नल्स बनते हैं। सो इट्स बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी के टाइम पे, जैसे कि होटल्स में हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ गेस्ट रहते हैं, 24 आवर्स ऑपरेट करते हैं, तो उस बेसिस पे ये हेल्प करता है। देन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल में, तो उस चीज़ के लिए इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि इस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा हो रहा है। देन क्रेडिट बाइंग, अगर होटल में कुछ क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं वो चीज़, तो उस चीज़ में ये हेल्प करता है जर्नल्स की कौन सा चीज़ क्रेडिट में बाय किया है, कौन सा कैश में बाय किया है। नेक्स्ट लार्ज पेरोल
अगर क्योंकि होटल में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है तो लार्ज पेरोल मेंटेन करने के लिए हर एम्प्लॉय का अलग अलग अकाउंट खोला जाता है, हर एम्प्लॉय की अलग अलग फाइल मेंटेन की जाती है। अब जैसे फाइल मेंटेन नहीं होती है तो अलग अलग अकाउंट उसमें उनके सिस्टम्स में होते हैं हर एम्प्लॉय का। नेक्स्ट there are some key journals in hospitality which is basically my topic of today's session. So first is purchase journal, second is guest ledger, third is cash disbursements and payroll journal. So basically purchase journal में क्या होता है, we'll see it. परचेज जर्नल में हम सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो कि क्रेडिट परचेज पे किया होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी होटल अपने एक वेंडर से वेजिटेबल बाय करता है, हर दिन बाय करता है क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदेगा होटल, तो पहली चीज़ वो हर दिन का एक एक बार पेमेंट नहीं करता रहेगा। जैसे आज खरीदा आज पेमेंट किया, आज खरीदा, मंथली पेमेंट होगा या क्वार्टरली पेमेंट होगा, तो वो तब तक तो क्रेडिट पे है ना उस वेंडर की साइड से। तो दिस इज बेसिकली कम्स अंडर परचेज जर्नल। फिर वो मंथ के एंड में या क्वार्टरली जैसा भी वो रूल फॉलो कर रहे हैं उस बेसिस पे वो पेमेंट कर देंगे। तो जैसे कि हर चीज़ इसमें आ सकती है, फूड एंड बेवरेज की इन्वेंट्री, जैसे हम देखें प्लेट्स, क्रॉकरीज, जो भी चीज़ें हैं कुछ भी आ सकती है। जैसे कि जो भी चीज़ क्रेडिट परचेज पे हो रही है होटल में, लिनन भी हो सकता है, हाउसकीपिंग के मेंटेनेंस सप्लाईज भी हो सकती है जो कि क्रेडिट में बाय की है। इसमें कोई भी कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगे, कैश ट्रांजेक्शन्स विल गो इन दी कैश बुक या बैंक ट्रांजेक्शन्स जो भी है तो कैश बुक में ही जाएंगे। अब परचेज जर्नल क्यों ज़रूरी है, कैन एनीवन टेल? ताकि हम लोग सारे जितने भी हमारे परचेजेस हो रहे हैं होटल में उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ पैसा मिस ना हो जाए। रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। दैट्स करेक्ट। सो पहले की सप्लायर ट्रैकिंग, कि हम किस सप्लायर से कितना ले रहे हैं, हमको इजीली पता रहे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने इससे इतना लिया था इतना लिया था। लाइक श्रेयसी एंड साहिल सेड कि रिकॉर्ड कीपिंग, तो रिकॉर्ड रहेगा तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रूफ रहेगा एंड देयर विल बी नो कंफ्यूजन। कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो सकता है यहाँ पे, कैन एनीवन? ताकि हम लोग देखें कि हमारे बाद में कितना कहाँ पे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, कहाँ पे कम खर्चे हो रहे हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स करेक्ट। तो ये कॉस्ट कंट्रोल इसीलिए लाइक श्रेया सेड कि हम एक्चुअली हमारे खर्चे मेंटेन कर सकें कि कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है उसको मेंटेन कर सकते हैं, कहाँ पे कम हो रहा है तो क्या ज़रूरत है और चीज़ उसमें इम्प्रूव करने की। How we can control the cost? सर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वही लेते हैं वेजिटेबल वेंडर का, कि हम कोई एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स ले रहे हैं जो कि सिर्फ रखा हुआ है एंड इट इज़ नॉट ऑफ यूज़, हमको चाहिए सिर्फ 100 ग्राम और हम मंगा रहे हैं 1 किलो, तो वो आधा तो वेस्ट हो रहा है पूरा, तो वो पेरिशेबल आइटम है, वो 3-4 दिन में ख़राब हो जाएगा एंड इट विल गो इन टू वेस्ट, तो ये हमारा कॉस्ट जा ही रहा है। तो वील हैव टू एनालाइज करना होगा प्रिडिक्ट करके और कितना यूजेज होगा उस You mean बेसिस to say पे। adequate inventory should be हाँ। there, or what else? ये भी हो सकता है क्या सर कि कभी कोई जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आया जो क्वालिटी मैच नहीं करता है तो वेंडर्स यूजुअली क्रेडिट नोट इशू करते हैं, पता नहीं पूछ लेते हैं। It depends on organization to organization. Will this come into cost control? It will be under basically audit. जो रिसीविंग वाले जो होता है, रिसीवर जो करते हैं ना, रिसीव जो करते हैं आपका, यू मीन टू से कि SPS जो है स्टैंडर्ड परचेज स्पेसिफिकेशन जो है आपका वो मीट नहीं कर रहा है, सपोज करो कोई चीज़, तो वी कैन सेंड इट बैक। हम ये कह सकते हैं ना कि वी रिफ्यूज़, कि भैया हमने सेब ऐसे मंगाए थे तुम्हारे ऐसे नहीं हैं, हमने लाल मंगाए तुम्हारे हरे हैं, हर पीले हैं, व्हाटएवर इट इज, तो यू कैन बेसिकली सेंड इट बैक। और उसका जो है वो लोग बैलेंस करने के लिए दे इशू आई थिंक Credit क्रेडिट नोट इशू करते हैं मेरे ख्याल से उसका, तो वो आपका उस दिन का वो काउंट नहीं होगा बेसिकली, इट विल नॉट बी काउंटेड इन द बिल्स दे विल रेज आफ्टरवर्ड्स। और क्या है, ठीक है, एक तो ये हो गया एडिक्वेट इन्वेंटरी शुड बी देयर, व्हाट एल्स? बिकॉज ये आपका जो है ना आजकल आपको मालूम होगा कि नाउ डेज मोस्ट ऑफ द होटल्स दे आर हैविंग डायरेक्टर लेवल बंदा होता है उनके पास, डायरेक्टर कंट्रोल्स। हाँ, आजकल हर होटल में यू विल फाइंड डायरेक्टर कंट्रोल्स, और वो उसका यही काम होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। और वो ज़्यादातर बंदा जो आता है यू विल फाइंड कि इट इज़ जनरली फ्रॉम F&B के बंदा गेट्स इनटू डायरेक्टर कंट्रोल। So what are the things how we can control over this?
कॉस्ट कंट्रोल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट बेसिकली. सिर्फ फूड आइटम्स जो बन रहे हैं वो भी अगर एक्सेस में बन जाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा और बेसिकली हमारे लिए लॉस ही होगा ना, हमारा पैसा लग रहा है हर चीज़ में. ओके. सर सप्लायर्स का भी देखा जाता है कि अगर कोई दूसरा सप्लायर अगर अवेलेबल Okay. है जो कर लेंगे, ओके. ठीक है. फिर सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज़ के अगर कोई दूसरा अगर ब्रांड अवेलेबल है हमारे जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कंसिडर किया जाता है. हाँ, लाइक शी फॉर एग्जांपल वो होता है ना कि ब्रिटानिया का यूज़ करें या इंग्लिश अवन का ब्रेड यूज़ करें तो एक वो चेंज करता है वो. ओके. ठीक है. तो बेसिकली जो आप बात कह रहे हो उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ. इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं. व्हेन वी डू द टेंडरिंग प्रोसेस देयर आर टू फेजेस फॉर दैट. वन इज टेक्निकल, वन इज फाइनेंशियल. तो टेक्निकल बिड होती है पहले. टेक्निकल बिड में क्या होता है कि जो भी आपकी गाइडलाइन है, जो भी आपका एसपीएस है, इट हैज़ टू बी क्वालिफाइड. सो सपोज कर 10 लोगों ने अप्लाई करा, 10 लोगों में से वी विल फिल्टर डाउन कि 4 लोग विल क्वालिफाई द टेक्निकल बिड. 4 लोगों को हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे एक तरह से. नाउ दोस 4 लोग विल डू द फाइनेंशियल बिड कि भैया मैं इतना रेट कोट करता हूँ. तो एज पर माई रिक्वायरमेंट दे विल गिव द प्राइसिंग कि भैया मैं इतना आपको चार्ज करूँगा, इतना इट विल कॉस्ट टू यू. तो जिसकी भी लोएस्ट होगा आपका उसको हम ऑब्वियसली बात इन्वाइट कर लेते हैं कि यू प्रोवाइड अस द वॉट एवर. तो चाहे वो मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, वॉट एवर इट इज, जो भी आपका होगा दैट कुड ऑल्सो बी द वे. ठीक है. जो आपने बातें बताई तो डेफिनेटली एक तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास स्टोरेज कितना है. तो वी कैन डेफिनेटली डू बल्क बाइंग बिकॉज व्हेन वी डू बल्क बाइंग वी कैन कट डाउन द कॉस्ट. बट ओवर भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी बैलेंस बेसिकली. तो बल्क बाइंग डज नॉट मीन दैट कि वी शुड बी ओवर क्राउडेड. ओवरस्टॉकिंग नहीं, ओवरस्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए वापस, है ना. एडिक्वेट होना है. एडिक्वेट होना चाहिए. बाकी जो आपने बात बताई कि ज़्यादा बनाना भी नहीं है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर. वेस्टेज नहीं होनी चाहिए आपकी. वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ बनाने में भी, वैसे भी यील्ड आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. जो आपका जो स्टाफ है, अब आप पनीर का पीस जो है, अगर आप सपोज करो पनीर पसंद बना रहे हो, आपका साइज इतने से इतना हो गया तो फूड कॉस्ट विल गेट डबल. पोर्शन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है आपका. इसके अलावा यू विल सी पिल्फरेज इज ऑल्सो देयर, एनी काइंड ऑफ थेफ्ट होते. आप लोग गए होंगे आईटी में तो रखा और निकल लिए बाहर, ठीक है, व्हाट हैपेंस. तो होता है कुछ चीज़ों पे, ठीक है, वी ओवरलुक, बट सम ऑफ द थिंग्स वी हैव टू एंश्योर. तो दीज आर द बेसिकली टूल्स दैट वी शुड एंश्योर. इन्वेंट्री होती है आपकी, फिजिकल परपेचुअल इन्वेंट्री. वी कीप अ चेक ओवर द फूड कॉस्ट, वी कीप द चेक ओवर आपका बेवरेज कॉस्ट. तो भी हम ये मैनेजर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. यू हैव टू एंश्योर, या शेफ की जिम्मेदारी है, यू हैव टू एंश्योर कि फूड कॉस्ट सही रहा आपकी, बेवरेज कॉस्ट सही रहा आपकी. तो दीज आर बेसिकली द टूल्स एंड उसके हिसाब से ही वी विल इवैल्यूएट यू आल्सो अकॉर्डिंगली. ठीक है. Next, why it's important, it will automatically eventually it will increase the efficiency. कि अगर हमारी क्रेडिट परचेजेस सही तरीके से लिखी हुई हैं, सही तरीके से जर्नल्स मेंटेन है, तो हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा एंड कोई स्ट्रेस नहीं होगा माइंड में कि ये चीज़ हमने नोट नहीं किया है, यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है. तो इट विल क्रिएट अ मिसमैच इन दी ऑपरेशंस. देन ऑडिट में हेल्प करता है, लाइक समवन ऑलरेडी टोल्ड कि ऑडिट में इजीली हेल्प करता है. हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं ऑडिट के टाइम पे, तो इट विल हेल्प इन ऑडिट्स एंड इनवॉइस मैच करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है परचेज जर्नल का, जिसमें कि पहले डेट लिखी जाती है, देन सप्लायर्स नेम, किस सप्लायर से हमने लिया है, क्या क्या आइटम्स लिए हैं किस सप्लायर से, इनवॉइस नंबर लिखा होता है एंड उसकी अमाउंट लिखी होती है. तो इट्स लाइक ऐसे मेंटेन रहेगा तो ऑब्वियसली ऑडिट्स में हेल्प करेगा, इजीली ट्रैकिंग हो सकती है. देन जब टोटल जो इसका जो होता है परचेज जर्नल का, देन टोटल इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट. जो परचेज अकाउंट होता है जो कि लेजर में बनता है अलग से, उसमें हम पोस्ट कर देते हैं. इंडिविजुअल बैलेंस जो क्रेडिटर्स लेजर में चले जाता है, इंडिविजुअल जो बैलेंस है इंडिविजुअल, जैसे कि इनका है 1200, तो इट विल गो इनटू क्रेडिटर्स लेजर. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज गेस्ट लेजर.
गेस्ट लेजर बेसिकली क्या होता है, इसमें हम होटल मेंटेन करता है, ईच गेस्ट का अलग अलग लेजर मेंटेन करता है हर गेस्ट के नाम के अंडर, कि उसका रूम कौन सा है, उसके फूड कॉस्ट कितनी है, उसने कौन सा मील कब ऑर्डर किया, कितना उसका लॉन्ड्री का बिल है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड अंडर दिस लाइक इट्स रिटर्न. रूम एंड रेंट टैक्सेस, रेस्टोरेंट एंड बार चार्जेस, लॉन्ड्री एंड स्पा एंड टेली कम्युनिकेशंस, एडवांस डिपॉजिट अगर कुछ किया है किसी गेस्ट ने तो वो भी इसमें रिकॉर्ड होगा, ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो कि उसने, अगर किसी को पता ही नहीं है, कोई दूसरी शिफ्ट पे और कोई नेक्स्ट शिफ्ट में आया है कि पहले वाली शिफ्ट में उसने एडवांस डिपॉजिट कर दिया था एंड नेक्स्ट वाली शिफ्ट में नेक्स्ट बंदे को पता ही नहीं है, किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं है अगर, तो पता कैसे चलेगा कि दैट उसका एडवांस डिपॉजिट था किसी भी XYZ गेस्ट का. व्हाट इज सिटी लेजर? जो उन गेस्ट के लिए बनता है जो नॉन रेजिडेंशियल. ये क्वेश्चन आपको उसमें आ चुका है. और इसका दूसरा नाम क्या होता है गेस्ट लेजर का? व्हाट वी कैन कॉल इट इन हाउस. इन हाउस क्या? रेजिडेंशियल गेस्ट और Non- नॉन non-resident. तो ये तो कैटेगरी हो गई, ठीक है. गेस्ट पोर्टफोलियो. हाँ, हाँ. फोलियो. पोर्टफोलियो नहीं, Folio, फोलियो. guest पोर्टफोलियो folio. तो हमारा शेयर का होता है. सॉरी फोलियो. फोलियो. गेस्ट तो गेस्ट फोलियो, ठीक है. Why it is important? Why guest ledger is important? It helps in real time tracking of the guest outstanding balance, and वो जब guest चेकआउट कर रहा है तो उस चीज़ में हेल्प करता है ताकि कोई गेस्ट से पैसा लेना ना रह जाए, या हमारे पास एडवांस ज़्यादा है तो और गेस्ट का कम था जो भी चार्जेस, तो वो उसको हमको देना ना रह जाए. देन एक्यूरेट बिलिंग में हेल्प करता है, किसी भी लॉस से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, जैसे कि कोई स्किपिंग हो गया हो जिससे कि चार्जेस रह गए हो रिकॉर्ड होना, जिससे कि डिस्प्यूट्स ना हो गेस्ट और हमारे बीच में, ताकि गेस्ट सेटिस्फैक्शन ना डिटोरिएट हो हमारा. नेक्स्ट क्रेडिट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग गेस्ट स्टेइंग ऑन कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑन और लॉन्ग टर्म क्रेडिट. नेक्स्ट गेस्ट लेजर का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जैसे कि इसमें होता है गेस्ट नेम, गेस्ट का रूम नंबर, देन ओपनिंग बैलेंस, उसने कितना दे दिया था पहले से एडवांस, देन टोटल चार्जेस कितने हुए उसके, उसका पेमेंट्स कितना हो रखा है, देन क्लोजिंग बैलेंस कितना लेना बाकी है, देन क्लोजिंग बैलेंस इवेंचुअली ट्रांसफर टू अकाउंट रिसीवेबल्स. अकाउंट रिसीवेबल इज बेसिकली जिनसे हमको पैसा लेना है. अकाउंट रिसीवेबल जिनसे भी हमको पैसा लेना है तो हम अलग बनाएंगे. जॉन डियो का अलग अकाउंट बनेगा, जैन स्मिथ का अलग अकाउंट बनेगा, तो अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं. नेक्स्ट इज कैश डिसबर्समेंट. सो कैन एनीवन टेल व्हाट डज डिसबर्समेंट मीन? ये आपके दिमाग में आया ही होगा क्वेश्चन. डिसबर्समेंट इज बेसिकली गिविंग मनी फ्रॉम एन पर्टिकुलर अकाउंट. किसी भी जैसे हम सैलरी दे रहे तो सैलरीज अकाउंट में से पैसा जाएगा, रेंट दे रहे तो रेंट अकाउंट में से पैसा जाएगा. डिसबर्समेंट इज बेसिकली दिस. दिस जनरल रिकॉर्ड्स ऑल कैश पेमेंट्स, लाइक जो भी कैश पेमेंट हो रहा है किसी, जैसे बेसिकली रेंट कैश में जा रहा है तो रेंट, सैलरी, वेंडर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, यूटिलिटी, रिपेयर्स, पेटी कैश रिम्बर्समेंट. व्हाट डज पेटी कैश रिम्बर्समेंट मीन? So petty cash is the total fixed amount given to a store जिससे वो चलता है, मतलब to carry out the expenses, और फिर इवेंचुअली जब उसका बिल लगा के वापस वो फाइनेंस से लोग पैसा वापस ले लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टोर चलाने के लिए 5,000 मैनेजर को दिया गया है. उस 5,000 का अगर वो मैनेजर स्टोर के लिए कोई सामान ले रहा है तो वो बिल लगा के वापस वो रीइंबर्स मतलब वापस ले सकता है. And what does petty cash reimbursement individually means to मतलब foreign? छोटे मोटे खर्चे के लिए होता है बेसिकली. So basically, Akansha is clear and Shreya ने भी point सही बोला है. But basically petty cash reimbursement क्या होता है? जो छोटे मोटे खर्चे के लिए होता है, जैसे कि आपने बोला कि आपके स्टोर को जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट ऑफिस देता होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को. बट इंडिविजुअल बेसिस पे अगर पेटी कैश रीइंबर्समेंट देखें हम यहाँ पर, तो ये होता है कि जो आप किसी सेल्स कॉल पे गए हो, आप सेल्स पर्सन हो आपके होटल के, आप सेल्स कॉल पे गए हो, आपके जो भी खर्चे हुए हैं, आपने ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर ट्रैवल एक्सपेंसेस तो मोस्टली होटल दे देता है, फूड एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं आपके, तो आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए. व्हेन यू सबमिट दैट रिसिप्ट अगेन टू दी योर फाइनेंस एंड योर डिपार्टमेंट,
then they'll reimburse the same amount to you. For that invoice is basically the important, आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर आप विदाउट बिल के आप जा रहे हो कि मेरा 5,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो they will not give it single penny. I hope it's clear. Why it matters? आउटफ्लो कंट्रोल के लिए मैटर करता है कि हम कितना दे रहे हैं और कितना हमको मतलब किस चीज़ में देना है. मिसयूज रिडक्शन, किसी चीज़ का कोई मिसयूज ना हो. ऐसे कि अगर रिसिप्ट नहीं रहेगी तो एम्प्लॉय मिसयूज कर लेगा ना कि मैंने तो इतना खर्चा किया, आप लोग दे नहीं रहे हो, ऐसा. कैश फ्लो क्लैरिटी रहेगी कि हमारा कितना कैश फ्लो हो रहा है, कब कब किस किस चीज़ में. देन ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट्स के टाइम पे हेल्प करेगा ऑब्वियसली. सो कैश डिसबर्समेंट का एक फॉर्मेट होता है जिसमें कि डेट, पेड टू, किसको दे रहे हैं, उनको हम पेई भी बोलते हैं, जिसको हम दे रहे हैं. देन उसका किस पर्पस से दे रहे हैं उनको, देन उसका वाउचर नंबर होता है, देन अमाउंट रिटर्न होता है. नेक्स्ट इज पेरोल जर्नल. So can anyone tell what is payroll journal? क्या guess करो what is it? What it can be? सैलरी ट्रैक करने वाला सैलरी. Yeah, that's correct. Labor So intensive by the name it's clear. It's payroll journal. So basically it records employees salary, wages, overtime उसका कुछ है, उसके allowances कुछ हैं, तो वो everything is recorded under this. Every single thing is recorded of every employee. So इन होटल्स इज बेसिकली जो भी होटल की रेवेन्यू होती है, इट्स अ डाटा. बेसिकली होटल की जो जितना भी रेवेन्यू है उसका 30 to 45% लेबर्स को लिए जाता है, उनके एम्प्लॉयज़ को जाता है. इट हैज़ अ फॉर्मेट फॉर पेरोल जर्नल. इसमें एम्प्लॉय का नाम लिखा होता है, उसका बेसिक होता है, उसका बेसिक कितना है, उसके अलाउंसेस कितने हैं, देन उसके डिडक्शंस उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं, देन उसका नेट पे आता है. जैसे कि वी ऑल हु ऑल वर्क सैलरी स्लिप्स मिलता है सबको, उसमें बेसिकली वो आपका पेरोल होता है. दैट इज बेसिकली दिस. और वो लोग अपना मेंटेन करके रखते हैं हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स. सो इट्स अ क्विज टाइम. First is, why do hotels require specialized journals? That's correct. Answer is B. Which journal records credit purchase from suppliers? Purchase. That's correct. The total purchase journal is posted to which account? Purchase account. Yes, that's correct. Like I mentioned कि परचेज जर्नल जो भी परचेज का टोटल होगा वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जब लेजर बनेगा. इंडिविजुअल सप्लायर बैलेंसेस फ्रॉम परचेज जर्नल गोज टू क्रेडिटर्स. या दैट्स करेक्ट. क्योंकि परचेज जर्नल इज बेसिकली क्रेडिट में हमने जो परचेज किया तो वो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा जिनसे हमको पैसा लेना है. Which journal is critical for revenue integrity in hotel? कैश डिसबर्समेंट जर्नल. Guest ledger, yes. Guest ledger balances are eventually transferred to guest ledger balances are eventually transferred to ABCD बोल सकते हो सबके. अरे हम वो सोच रहे कौन सा होगा. हम कंफ्यूज है और सी के बीच में. Okay, Accounts receivable. correct है. Account receivable, that's correct. सी. पढ़ के समझ आया वो. Which journals helps in control and auditing of cash payments? Yes, that's correct. कैश डिसबर्समेंट जर्नल में सारे कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. Which journal tracks employee Payroll. payroll journal?